Anybody can define what is business services? What do you understand by service? You avail a lot of services, many services. You avail service of a taxi driver. You avail services of your maid. You avail services of doctor. You avail services of engineer. You avail services which make your life easy going. आपको बाजार जाना है, आप टुक टुक वाले से सर्विस लेते हैं. He gives you the service. आपको सामान खरीदना होता है, तो आप जब गुड्स परचेज करते हैं, अ टेंजिबल थिंग आप परचेज करते हैं, अ फिजिकल थिंग आप परचेज करते हैं, देन it is easily distinguishable and it is called goods. When we talk of goods, goods means it is a physical product, it is a physical thing, it has some shape, size, it has, you know, you can easily identify it, and you can also weigh it, you can also touch it, you can also feel it. What goods? Goods are tangible products, physical products. We are talking about goods and services in this chapter, and different types of services provided by different vendors, which are useful for the business, which are very, very useful for the business, without which business may not run very properly. Therefore, service means any economic activity. Service is the result of any economic activity which is done to do trade, right? To do trade. I told you there is difference between trade and commerce. Commerce is anything which facilitates trade. Facilitates trade means which helps in doing the trade. उसके लिए आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, फिर आपने उसमें पढ़ा था, देयर इज बैंकिंग, देयर इज वेयर हाउसिंग, देयर इज ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज इंश्योरेंस. All these auxiliaries to trade we have read in very detail in the chapter. So all these activities which are done and which are economic activities because they are done with the sole motive of earning profit, they all are known as services. Services provides the satisfaction of wants, satisfaction of needs. Whatever your needs are, they are satisfied by the service, right? आप कहीं जाते हैं, होटल में रूम लेते हैं, स्टे करते हैं, वहां पर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. इफ यू गेट सेटिस्फाइड, यू पे फॉर इट. उससे वो होटल रूम आपका नहीं हो जाता है. You are only availing the services, you are only using it to satisfy your needs, desires, wants. Transfer of ownership is not there. लेकिन जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो गुड्स आपकी हो जाती है. You become the owner of that good, that is transferred to you. You pay for it, but when you pay for the service, only you avail service, you use that service for your satisfaction of wants, needs. Further we will study about their differences also, but first, what are the characteristic features of services? Services के features क्या है, या what is the nature of services? Number 1, पढ़िए. प्राची, कौन सा बताइए? In your book, you have the book? Not yet, sir. अभी तक बुक नहीं लिया बेटा. Books are available. You just get it fast because already this is the 4th chapter. Next week you have the exam. Next month means already it is 18, 19 today, and next month you have the exams. You have to be very, very, serious about it. Already I have sent you the PDFs of the chapters, but reading from the mobile or laptop is entirely different experience than reading it from a book, getting it from a book. Puneet, first
feature, service, unmute, not getting your voice, Payal. Sir, the first feature is intangible. Intangible, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ लिया है, अभी मैंने आपको बताया मनमीत. Intangible means which cannot be seen, which cannot be touched, you can only feel it. You take the service and you feel whether the service was good or not, whether it was comfortable or not. आप टैक्सी करते हैं तो टैक्सी वाला आपको किस तरीके से ले जाता है, टैक्सी में किस तरीके से आपको फैसिलिटी थी, एसी चल रहा था नहीं चल रहा था, सीट्स वर कंफर्टेबल एंड ही वाज ड्राइविंग प्रॉपर्ली. आप लास्ट में ही कहेंगे हाँ ठीक था, नेक्स्ट टाइम आल्सो आई विल हायर हिम. इफ द सर्विस इज नॉट गुड, इफ यू हैव नॉट फेल्ट इट प्रॉपर्ली, तो आप कहेंगे नो, नेक्स्ट टाइम आई हैव पेड आल्सो एंड he did not provide me the satisfaction. So services are intangible, you cannot see, but you can only feel it. Just a minute, there is a call from sister. So intangible services are intangible, you cannot touch them, you cannot see, but it can be felt. आप बैंक में जाते हैं तो आप जब आप वहां बैंक में जाते हैं, मान लीजिए एक न्यू अकाउंट खोलने के लिए, एंड यू सी एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, they welcome you, they provide you with all the information, they assist you in filling up the form and other formalities and all, they make you comfortable sitting there. So आप कहेंगे वेरी गुड, द बैंक इज वेरी गुड, उनके यहाँ पर सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, द सर्विस इज परफेक्ट. मीन्स टू से आपने उसे फील किया, वहां पर यू फेल्ट कंफर्टेबल. सेटिस्फैक्शन ऑफ योर डिजायर, योर नीड्स इज फॉरमोस्ट, वो सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं सर्विस वाज गुड. नंबर 2, inconsistent. Services are always inconsistent. सर्विसेज में आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप अगर 10 बार चाय बना के देंगे किसी को, हर बार चाय में टेस्ट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ ही जाएगा, राइट? इफ यू सर्व समथिंग टू समबडी, देयर विल बी ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. आप तो जब गए थे पिकनिक पे, तब तो आपको बहुत अच्छा लगा था सर्विस, आपने अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया, उनको हो सकता है कि वो सर्विस उतनी पसंद ना आए. एवरी पर्सन डिजायर आर डिफरेंट, एवरी पर्सन सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिफरेंट. सेम सर्विस से डिफरेंट पर्सन्स में गेट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल. सो सर्विसेज जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, दे कैन नॉट बी सेम ऑल द टाइम, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ up and down in the services. That is why they are called inconsistent. Inconsistency is there. प्रोडक्ट तो आपका कंसिस्टेंट होगा ना. अगर आपने ये मोबाइल खरीदा है
सेम कंपनी का सेम मॉडल आप खरीदेंगे तो उसमें सेम सर्विस मिलेगी आपको, बिकॉज प्रोडक्ट इज सेम। वो प्रोडक्ट, उसमें वही फीचर है, वही सारी चीजें हैं, तो इट विल गिव यू सेम सेटिस्फैक्शन। बट इफ वी टॉक ऑफ सर्विस, तो भाई एयरटेल है, आइडिया है, कभी उनकी सर्विस बहुत अच्छी आ रही होती है, कभी कम आ रही होती है, किसी जगह में बहुत अच्छी होती है, किसी जगह में नहीं होती है, किसी फोन में बहुत अच्छी सर्विस होती है वही, किसी फोन में वही सर्विस बहुत बेकार हो जाती है। जो सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट। नंबर थर्ड, इनसेपरेबल। सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस ले रहा है कंज्यूमर, दोनों का होना जरूरी है। दे आर इनसेपरेबल। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। कोई पिक्चर हॉल है, कोई मूवी अगर उसमें स्टार्ट होती है, उसमें अगर 25 सीट खाली रह गई, तो वो सर्विस जो 25 सीट, अगर वहां पर 25 लोग बैठ के देख रहे होते तब भी वो मूवी वैसी चलती। 25 लोग वहां बैठ के नहीं देख रहे हैं तब भी वैसे ही। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज कंज्यूम्ड। somebody must be there to consume the service, otherwise service goes waste. फैन चल रहा है, उसकी हवा आ रही है लेकिन कोई हवा लेने वाला नहीं है, तो सर्विस क्या हो रही है, वो वेस्ट जा रही। sun is there but you are not coming out of your house to take the sunshine, waste. And you cannot store that service, the energy, to use it further. It should be used at the same time when the services are being rendered or being given. I hope it is clear to you कि जिस टाइम पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जिस टाइम पे सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उसी टाइम पे उसे कोई कंज्यूम करने वाला होना चाहिए, अदरवाइज वो सर्विस क्या हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। Nobody would be able to avail the facility. The next one is inventory. Inventory का मतलब वही है stock. It cannot be stored. No service can be performed before its consumption date. A service provider provides service only when the customer asks for it. तो कंज्यूमर का और सर्विस प्रोवाइडर का होना जरूरी है। कोई भी सर्विस तभी दी जाती है जब उसके बारे में उसकी डिमांड की जाती है, राइट? यू कैन नॉट स्टार्ट गिविंग सर्विस बिफोर इट इज डिमांडेड, बिफोर इट इज ड्यू। एंड द लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। अ कस्टमर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिलीवरी प्रोसेस ऑफ सर्विस। कस्टमर का होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज सर्विसेज विल go in vain. vain means बेकार चली जाएंगी, वेस्ट चली जाएंगी। all the services will go in vain. Nobody will be able to take the advantage of it. Now, difference between goods and services is given very clearly in the book. Difference between goods and services. According to the nature, good is a physical product, whereas service is a process. It is an activity, outcome of an economic activity. Whenever you differentiate, you have to differentiate on the basis of differences. What is the basis? Basis is number one, nature. दोनों का नेचर अलग है। एक प्रोडक्ट है, गुड इज अ प्रोडक्ट, whereas service is an activity or process. Then type. Good is homogeneous, services are heterogeneous. Homogeneous means which remain consistent or same all the time. सेम प्रोडक्ट आप बार बार खरीदेंगे तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेम तरीके से आप उसे यूज करेंगे। वेयरएज सर्विसेज अगर आप बार बार लेंगे, हर बार आपको सर्विसेज में कंपैरिजन करने का मौका मिल जाएगा। यू विल फाइंड इट
little bit of different from the previous experience. So services are heterogeneous. Science में आपने पढ़ा होगा. Homogeneous means same, which remains same. Services are heterogeneous. Then consistency. I told you inconsistent are services, whereas goods are consistent. आपको बराबर मिलेंगे, उतना ही मिलेगा, सेम क्वांटिटी होगी, राइट. सर्विसेज में इट कैन बी डिफरेंट. इन्वेंट्री मींस स्टॉक. गुड्स कैन बी स्टोर्ड. गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं. सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड. they have to be utilized when they are produced or when they are in the process. Character. Goods are tangible, services are intangible. Goods are tangible, services are intangible. Is it clear to everyone? Ownership और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप. गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. जब आप पैसे पेमेंट कर देते तो गुड्स आपकी हो जाएंगी, लेकिन जब आप पेमेंट कर देंगे सर्विस के लिए तब भी आप सिर्फ सर्विस को अवेल कर पाएंगे. आपने टैक्सी का किराया दे दिया, टैक्सी आपकी नहीं हो जाएगी, उससे टैक्सी ओनर की ही रहेगी टैक्सी. यू हैव ओनली पेड फॉर द सर्विस. These are the 5 or 6 important differences between goods and services. Now, if you want to ask any point, you can ask. Excuse me, sir. Yes. Sir, please explain the point inseparable. How goods are not Inseparability. Yes, sir. Provider and the consumer, they have to be present. They have to कोई भी सर्विस, if somebody is providing, you have to be at the receiver end to take it. Otherwise it will go waste. आप डॉक्टर के पास जब तक जाएंगे नहीं और डॉक्टर आपको सामने देख के आपका जो है ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, तो कैसे आप वो इलाज करेगा? आप कहेंगे सर वो फोन पे दवाइयां बता सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी प्रॉपर. उसकी जो प्रॉपर सर्विस अगर आपको लेनी है, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर. यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर. जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट? यू आर गेटिंग मे बी 50% or 60% or 70% or 80%. Even if you are getting 100% of what I am teaching, it will be much more better when we will be face to face in the classroom. Are you getting my point? My service of teaching will be best. और जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो अगर हम इसमें रिकॉर्ड ना करें, अगर उसकी रिकॉर्डिंग ना हो तो वो वेस्ट हो गई ना. For those who have not taken it by being present at the time when I was delivering that lecture. Are you getting? That is why Yes, sir. be separated. The service provider and the consumer who takes the service, best results are there when they both are present simultaneously together. If it is not there, then service अगर आपने उसकी ली भी तो that will not give you the satisfaction level what you want. Is it clear? Yes, sir. All type of services, they are best taken or best results are achieved when both the service provider and the customer are present simultaneously. Any other point? Excuse me, sir. Yes. Sir, please explain the point inventory. Inventory means stock. आप किसको स्टोर करके रख सकते हैं? आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं. गुड्स का मतलब फोन को मैं जो है स्टोर करके रख सकता हूँ, 8, 10, 15 फोन. आप खाने की चीजों को, जो फिजिकल प्रोडक्ट है, दे कैन बी स्टोर्ड, बट सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड.
सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, कि आप जो सोचे कि मैं जो है डॉक्टर की जो वो है सर्विस है उसको स्टोर कर लूं और जब कभी बीमार पड़ूंगा मैं उसको ऐसे यूज कर लूंगा. यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन और दैट सर्विस. द सर्विस का मतलब यहाँ पर होता है जो डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है, ऑब्जर्व करके फिर जो वो डिसाइड करता है कि क्या देना है, दैट इज हिज सर्विस. मेडिसिन आर नॉट द सर्विस, वो तो फिजिकल प्रोडक्ट है. जो वो सर्विस देता है अपनी बाय हिज नॉलेज, राइट, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते ना आप उससे ले सकते हैं. that will remain with the doctor itself. You can only use it when you will go tell about your problem. He will observe you, examine you, diagnose you, and then give you the service. No service can be stored. अगर आपको जाना है और वहां पर पिकनिक करने जाना है और मान लीजिए वहां पर आपने नैनीताल में बोटिंग करनी है, तो आप अभी से जो है बोटिंग की सर्विस को जो है स्टोर नहीं कर सकते, राइट. व्हेन यू विल गो देयर एंड देन ओनली यू कैन एंजॉय. यहां पर स्टोर करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको. यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट. क्लियर? Yes, sir. एनीबडी एल्स? Excuse me, sir. यस. Sir, Yes, yes. please repeat this. Please repeat the second point, inconsistency. इनकंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मींस सेम. कंसिस्टेंट मींस सेम और इनकंसिस्टेंट का मतलब नॉट सेम. तो मैंने आपको बताया कि सर्विस कभी भी सेम नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ ही जाएगा, है कि नहीं. घर में ही आप मान लीजिए पैर दबा रहे हैं अपने पेरेंट्स के, एक दिन आपने दबाया, दूसरे दिन फिर पैर दबाया, वो कहेंगे नहीं कल तो बड़ा अच्छा दबा रहे थे, आज सही नहीं है. दो यू आर द सेम पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर है आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हर रोज में फर्क है. बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस लेवल, बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल, बिकॉज ऑफ द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स. तो सेम सर्विस may give you more satisfaction, same service may give less satisfaction to some other person. Anybody else? इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस. टाइप्स ऑफ सर्विसेज: बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस. बिजनेस सर्विस आपको पता ही है, जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन. सोशल सर्विस आपको पता ही है, सोशल सर्विस फॉर चैरिटी, फॉर द पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल, नीडी पीपल, जो भी आप सोशल सर्विस करते हैं, दैट इज डिफरेंट. एंड देन देयर इज पर्सनल सर्विस, व्हेन यू हैव सम पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी और आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. आप म्यूजिक बहुत अच्छा जानते हैं, आप म्यूजिक सिखाते हैं, दैट इज अ पर्सनल सर्विस. पर्सनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी, एंड दैट वे यू गिव द पर्सनल सर्विस. हम इसमें पढ़ेंगे कल, टुमारो, अबाउट डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज. बहुत सारी सर्विसेज के बारे में आपको पता होगा बैंक की. बैंक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, आप कल पढ़ के आएंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट आप बैंक में खोल सकते हैं. इन 5 के बारे में आप पढ़ के आएंगे कल. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट का. किसी में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, किसी में कम. कोई आपका बिजनेस पर्पस के होते हैं, कोई सेविंग पर्पस के होते हैं, कोई जो है आपका लॉन्ग टर्म उसके लिए यूज के लिए होते हैं. तो आप जब लाइन से इसे पढ़ेंगे, आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. जो भी उसमें पॉइंट होगा फिर आप वो पूछेंगे. इसके बाद आएंगी बैंकिंग सर्विसेज. बैंक हमें कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है. अर्लियर आपको पता ही है, बैंक के सिर्फ 2 काम होते थे. अर्लियर आप वहां पैसे जमा करते थे और बैंक आपको उधार देता था. अर्लियर, ये तो बैंकों ने अभी शुरू किया है, पहले बैंक के सिर्फ 2 ही काम होते थे: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी. पैसे लोगों के जमा करना और लोगों को उधार देना.
जो पैसे लोगों के जमा होते थे वो उस पर इंटरेस्ट देता था बैंक, और जो बैंक पैसे उधार देता था उस पर वो इंटरेस्ट लेता था, और जो इसका डिफरेंस होता था वही बैंक का फायदा होता था, क्योंकि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेता था और कम इंटरेस्ट देता था पहले। अब तो आप देखेंगे बैंक में हर तरह की सर्विस है। बैंक आपको एटीएम सर्विस प्रोवाइड कराता है, बैंक आपको आजकल जो है ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाता है। बैंक अब जो है सभी क्योंकि डिजिटलाइज हो गए, अब आपका ई बैंकिंग चालू हो गई है और डिफरेंट एप्स के थ्रू होता है, वो ठीक हो गया। उसके बाद बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बैंक आपका जो है कस्टोडियन होता है, बैंक आपका गार्जियन की तरह बिहेव करता है, बैंक आपका गारंटर बनता है, बैंक आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, जो पहले सिर्फ पर्सनल लोन देते थे, अब एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, दिस लोन, होम लोन, वो प्रोवाइड करता है। बैंक आपको अब इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी देता है, बैंक इंश्योरेंस के काम भी करता है। So different services of bank we will study in this chapter. After this, then we will study about different type of insurances. Very important है, क्योंकि इंश्योरेंस के बगैर कोई भी बिजनेस का चलना बहुत मुश्किल है। इंश्योरेंस इज मस्ट। सो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, और फिर आगे और चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। सो रीड इट, जहां तक चैप्टर आपका पढ़ते जा रहे हैं उतना आप कॉपी में करते जाइए। Every day keep your work updated so that you do not have problems afterward. Anybody want to ask anything? Yes, anything you would like to ask? Any other information you want to get? Anybody? Everything clear? Tomorrow come prepared Yes, with sir. different types of accounts. Yes, Payal. Sir, just nothing. I just want to ask. Okay. So very good. Many of you are regular, and only you are regular. Many of the students have not joined the classes for one day also. So don't worry about them. They will suffer later on, and you will be in advantage. You will be in advantage. So take care of yourself and complete your work simultaneously. Everyday work should be done, every day, so that there is no pending work, there is no overload of work. Every day if you do, it will hardly take you 15 minutes, 20 minutes, or maybe half an hour. But if you keep it for pending, then when you do it afterwards, it is of no use. It is just like kala aksar bhais barabar. You are copying and getting nothing out of it. So no use. So do it daily, and every day it is getting recorded. Okay? Any other point? Any other question? No? Thank you. God bless all of you.